Bismillahirrahmanirrahim. With the hope and prayer for your well-being, here we start our today's program. इस दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज से तकरीबन 14 साल पहले, it was 2005, 2006 when I started my new job and I had to depute myself in a city named Multan. ये वो टाइम था जहाँ पे एक टेलीकॉम ऑपरेटर जो है अपने बिजनेस ऑपरेशंस मुल्तान सिटी में स्टार्ट कर रहा था एंड वी वर न्यू टीम पायनियर टीम हमने वहाँ पे ऑफिस का सेटअप रेंट पे लिया हुआ था एंड दैट वाज अ कंप्लीट एम्प्टी हॉल जहाँ पे हमें अपना टाइम स्पेंड करना था एंड इन दैट टाइम फ्रेम हमारे रीजनल डायरेक्टर ही ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद टू मीट अस इन मुल्तान एंड दैट वाज अ सरप्राइजिंग डे फॉर मी बीइंग अ गाय इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यूँ कि शाम को जब वो हमारे ऑफिस में पहुँचे तो जो ऑफिस का वो रेंटल सारा एरिया था उसके बाहर एक पार्किंग लॉट बहुत बड़ी सी थी जो कि एम्प्टी पड़ी हुई थी एंड दैट रीजनल डायरेक्टर टोल्ड अस कि यार आप यहाँ पे बैडमिंटन क्यों नहीं खेल लेते एंड दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी कि यार एक रीजनल डायरेक्टर क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से आया था वहाँ पे सेल्स के प्रेशर्स के कुछ नेचर कुछ और होती है इट वाज अ पॉइंट टू थिंक दैट अ टॉप मैनेजमेंट गाय कैन लिव दिस वे एज वेल उस पॉइंट से ऑनवर्ड आई पर्सनली स्टार्टेड वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग दैट पर्सन crossing the ladders of success all the way in that company where I was employed. I'm talking about no one else other than Faisal Qayyum Saab, who was working as a director sales and distribution Telenor Pakistan when I was working with him as a team member as well. So before going into further details about Faisal Saab, let us ask Faisal himself to tell us about his introduction and his business profile as well. So welcoming Faisal sir. Assalamu alaikum Faisal bhai. Walaikum assalam. Thank you very much for joining the program and giving us a time to share your wisdom. Tell us something about yourself, Faisal bhai. हमें अपने बारे में भी कुछ बताइए और अपने business के बारे में भी कुछ बताइए. Thank you Siddharth for having me on the show. Basically मैं लाहौर से हूँ. I got my early education in Lahore. HM कॉलेज से पढ़ा. O level HM कॉलेज से किए. फिर गवर्नमेंट कॉलेज से अपना इंटरमीडिएट और बैचलर्स किया. फिर I went to LAM for my MBA. 97 मैंने LAM से MBA किया. उसके बाद my first job was with the Pepsi-Cola bottler in Faisalabad. I worked with Pepsi-Cola bottler for 1 year. उसके बाद I moved to Unilever as area manager in Islamabad. और फिर I stayed with Unilever for a good 6 years. Sales में grow करता रहा. I became regional head for Faisalabad, then regional head for Multan. And then my last position in Unilever was manager channels, basically looking after wholesale, rural, and new channels. In 2005, I moved to Telenor. I joined them as regional director, C2. There for the first time I met you as well. And then in Telenor also it grew. In 2008, I became the country head for sales and distribution, and took the company from about 35 billion to 90 billion in 5 years' time. In 2013, I moved as director of customer value and management analytics, looking after business intelligence, service design, market research, customer value management. So in 2017, I left Telenor and I wanted to start my own business. And because basically my background was from sales, so I was considering that I should go and get a brand and launch it in Pakistan. So I traveled to Dubai also, explored, met different people there. And मेरी ख्वाहिश थी कोई ब्रांड ऐसा मिल जाए, पर जो अच्छे ब्रांड थे उनकी प्राइस टैग बहुत ज़्यादा था, और जो सस्ते ब्रांड थे कि आप सिर्फ 2 कंटेनर ऑर्डर करें और आप फ्रेंचाइज मिल जाएगी, उसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा था. So while I was exploring this, I met a friend of mine, Doreen. He's my class fellow from LAM. He happens to be CEO of Hum Network. So he had this idea that हमें e-commerce store start करना चाहिए और इसका बहुत scope है, ठीक है. So at that point it was just an idea. So and he said if you want, if you can come and lead this, ठीक है, so we can start. So e-commerce needs a lot of investment. So I said okay. So I said okay, give me some time. So for the next 2 weeks or a month or so, मैंने थोड़े से number crunching की, numbers देखे, looked at different models and what is happening in India, what is happening in Malaysia, Amazon his success story, Alibaba his success story, and then finally we said okay. So in November of 2017, actually I formally joined. So Hum Mart के अंदर it is an online grocery store
primary आपकी core is grocery. We started as a grocery store, but about 3-4 months back हमने कुछ और item पे add करने like mobile phone, but we still remain primarily a grocery store. So in November 2017 we started off और फिर हमने product ऊपर काम किया और April 20th 2018 we went live. हम मार्ट के 70% इन्वेस्टमेंट हम नेटवर्क किए और रिमेनिंग 30% में आई एम अ शेयर होल्डर and we have got 2 other friends who also happen to be Lumps MPA97. They are also partners. So on April 20th, 2018, we went live, and since then, I mean, we just celebrated our second anniversary, and it has been a roller coaster ride. We have been growing month on month, every month, and Allah has been kind. Looking at what we achieved in April 2018 and what we achieved in April 2020, it is 70 times more. Number. So I mean overall, I think a rewarding journey so far. That is nice. That is really nice. Before we go further into the details and discussions, we have a guest, Mohammed Sajwani साहब ने हमें join किया है और मोहम्मद सजवानी साहब कह रहे हैं सलाम to both of you. Good to see Faisal after a long time, after a very long time. तो सजवानी साहब अच्छा मुझे ये बताइए फैसल भाई कि वंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस करंट सिचुएशन, जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी कि आपने बताया कि बहुत से रोलर कोस्टर राइड थी और बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिली. आई बिलीव कि ये जो पेंडेमिक वाला एलिमेंट है, इस तरह की सिवियरिटी ऑफ द एडवर्सिटी आपने नहीं देखी होगी इन पिछले 2 सालों के अंदर. सिंस दिस इज़ द लॉकडाउन ऑफ ए यूनिक नेचर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक तरफ लॉकडाउन में ये कहा जाता है कि फ़िज़िकल इंटरेक्शन नहीं करनी, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है. दूसरी तरफ अगर मैं आपके बिज़नेस को देखता हूँ तो ये ऑनलाइन है. ऑनलाइन के ऊपर डिजिटल इन्फ्लक्स और ट्रैफिक नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गई है. तो आपका जो इनपुट है विच इज़ कमिंग फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट हैज़ प्रॉबली हैज़ इंक्रीज्ड. अब आपके पास नंबर होंगे या नहीं होंगे, एंड जो डिलीवरी या आउटपुट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिज़ाइन आप उसके अंदर डिसएडवांटेज में. हाउ टू क्रिएट द डेलीगेट बैलेंस बिटवीन दीज टू, एंड इफ दैट वाज द केस इन योर केस, तो फिर हाउ डिड यू मैनेज एंड हाउ यू केम आउट ऑफ इट इन द ओवरऑल सिनेरियो? So, the 22nd March को lockdown announced हुआ, 23rd was the first day basically. Initially it was very chaotic और immediately आप कह सकते हो कि हमारी जो sales हैं, ठीक है, what they were, let's say if they were on 100 on 22nd March, they went to 400. So हमारी sales 4 times हो गई. But at the same time जो challenges थे वो ये थे कि गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट ने जब शुरू में लॉकडाउन तो बहुत ज्यादा सख्त था, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बैन लग गया हुआ था. आपको अलाउ था, वी वर ग्रोसरी स्टोर्स, वी वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम डे 1, बट हमें अलाउ था कि वी कैन ओनली वर्क फ्रॉम 8 till 5. सो टिपिकली वी वर्क 24 आवर्स, सो वी टेक ऑर्डर्स ऑल डे राउंड एंड रात को भी पैकिंग हो रही होती है. सो एक तरह से तो हमारे पास जो टाइम अवेलेबल था दैट वाज 1/3. वी कैन ओनली वर्क अबाउट 8-9 आवर्स. सिमिलरली जो बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी, हमारी लेबर फोर्स जो सराउंडिंग में थी वो तो आज आ गई, बट जो मेजर चंक था, आप कह सकते हो हमारी 50% लेबर फोर्स नहीं आई. तो आई वाज ओनली वर्किंग विद हाफ द स्टाफ. सो विद हाफ द स्टाफ 1/3 द टाइम आई हैड 4 times the order. ओके, सो इसके साथ साथ ऑब्वियसली एक फियर फैक्टर भी था, ठीक है. तो starting point was obviously basically to ensure the safety of my employees basically. So हमने जो भी जो गाइडलाइन थी गवर्नमेंट की, कभी मेड श्योर के एक तो हमने फर्स्ट थिंग ये की कि जो लोग नॉन क्रिटिकल थे अदर देन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल BI है, मार्केटिंग है, प्रोडक्ट है, ठीक है, वी एक्सपेक्ट दैट दे विल वर्क फ्रॉम. सो ओनली ऑपरेशनल टीम, ठीक है, जो जिन लोगों ने पैकिंग करनी है, पिकिंग करनी है, लॉजिस्टिक्स है और कॉल सेंटर, ठीक है, दे वर आस्क्ड टू कम टू द ऑफिस. ठीक है, अब जो लोग वो ऑफिस पे आ रहे थे तो हमने कहा कि बिकॉज ऑलरेडी वी वर वर्किंग विद हाफ द स्टाफ, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑलरेडी हमने उससे भी इंश्योर कर ली. और उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, हमने हर एक को मास्क प्रोवाइड किए, हमने सैनिटाइजर्स ऑफिस के अंदर जगह का प्लेस कर दिए, एवरी डेस्क के ऊपर हम वी मेड श्योर सैनिटाइजर इज अवेलेबल. और हमने इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है, जो भी गाइडलाइन थी वो हमने बहुत अर्ली स्टेज पे इम्प्लीमेंट कर.
इसके बाद I was very clear कि this can be a watershed moment for Hamad, because or this can be a tipping point for Hamad, because if you are able to capture this opportunity and grab this opportunity with both hands and give the right customer experience, okay, तो जो orders हम आप भी ले रहे हैं, ठीक है, we will settle at a much higher level. So the first and foremost thing was making sure that I'm communicating with the team. So एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया, एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया, ठीक है. ऑब्वियसली सबसे पहले तो एक फियर फैक्टर था कि लोगों को फैमिलीज की तरफ से प्रेशर था कि भाई हम कोरोना वायरस के अंदर ऑफिस जा रहे हैं, तो हमने लोगों को कंफर्ट दिया कि भाई इफ एनीबडी कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ चीजें, तो यू कैन जस्ट स्टे बैक एट होम एंड जस्ट लेट अस नो. और फिर हमने एक क्वेश्चन है मेरा. Faisal, मेरा क्वेश्चन ये है कि being the top leader in that organization, there was a point arrived when you saw this situation as an opportunity, जिसके बाद आपने एम्प्लॉयज़ को गैदर करना शुरू कर दिया. मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वो जो स्विचिंग पॉइंट है जहाँ पे एक ह्यूमन माइंड ये सोच लेता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, वो स्विचिंग पॉइंट उस इंसान के दिमाग में कैसे आता है और उसको कैसे विजिबल रखना है for the new startups? Okay, I think for us it was very easy because the number of the traffic, for us the traffic jumped 3 times. So we actually spent on digital marketing to bring people on our website. So organically traffic went 3 times up. Okay, so number of orders initially they went 4x. So if we are at 100, we went to 400. So the opportunity was very clear. Okay, the point was that we should not get into a shell and just just shut down our website. So there were websites that were shut down. So there were major players who shut down their website because initially it was very chaotic. Okay. At the same time, so we got everybody together, and I told everybody that okay, we need to make the most of this opportunity, and motivated the team. So what needs to be done for that? Okay. So first of all, I needed to show up as well. Okay. So while everybody, I was calling everybody to office, I needed to be visible. So I started coming to office every day. Okay. So looking at the so I said, let's break the problem into 2 or 3 parts. So we said we are inbound, where we actually get the stock. Okay. So we were short on pickers because staff was not coming. So we hired people on daily wages. Okay. And we said, okay, initially we were hiring as high as 30 to 35 people on daily wages to make up for the shortage and stuff. Then we said, okay, we work 24 hours. So we have X number of stations. So they work in 3 shifts. Now we are only working in 1 shift. So हमने कहा कि okay, immediately हम किस तरह अपने outbound station increase कर सकते हैं. अब सब market बंद थी, ठीक है. So we actually got hold of the carpenter कि उसने में tables बना के देने. We went to their houses. हमने कहा कि हमें कहाँ से हमने OLX पे check किया, हमें scanners, हमें printer किस तरह मिल सकते हैं. But I think one of our values of the organization is bias for action. I think that value really came out. Team got together and team ने कहा okay, we will find a way. और हमने I think within 3 or 4 days, ठीक है, हमने tables भी arrange किए, हमने printer, scanner, laptops arrange किए. तो basically increase our output. और हमारा जो overall model है वो that is it is an asset heavy model. So हमारे पास अपना warehouse है, अपना call center और अपनी fleet. पर अब fleet को overnight expand करना बहुत difficult था. Okay. So what we did was कि हमने कहा कि मार्केट में जितने अवेलेबल पार्टनर्स हैं, so स्टार्टिंग हमने लेपर्ड, करीम, बाइकिया और डेक्स, ठीक है, तो जो दराज की लॉजिस्टिक्स कंपनी, इन चारों को हमने एंगेज किया. सो हमने अपनी लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी वहां से बढ़ाई और मेरा कॉन्टिन्यूसली, और हमने इसके साथ एक वॉल्यूम सेटअप कर लिया. हमने कहा कि भी बिकॉज ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, ठीक है, और हमारे पास कुछ चीजें थी, हमारे पास हमने कहा था कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, इफ वी कैन टेक लेट्स से नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसके बाद हम उसका स्लॉट बंद करते हैं. तो टिपिकली वी डिलीवर सेम डे और नेक्स्ट डे. सो हमारे पास जितने ऑर्डर्स आ रहे थे, हम 5th डे पे चले गए. वी वर डिलीवरिंग आफ्टर 5 days. तो फिर हमने वी टुक ए कॉन्शियस कॉल कि हमने अभी वेबसाइट बंद करनी है, हम कस्टमर एक्सपीरियंस खराब. एट द सेम टाइम हमने कहा कि हम थोड़ा सा वी वांट देयर वाज अ कॉल कि हम ज्यादा कस्टमर्स को हैंडल करना चाहते हैं या ज्यादा वैरायटी ऑफर करें. सो हमने एक कॉल ली कि हम वेजिटेबल्स को इमीडिएटली ऑफलाइन कर देंगे, बिकॉज
another complexity in our operation. और फिर अगर आप वेजिटेबल डिलीवर ना कर सकें तो हम वो फ्रेश प्रोक्योर करते हैं, दे ऑल गो वेस्ट. तो हमने वेजिटेबल्स और फ्रोजन आइटम्स को डीलिस्ट किया और हमने कहा कि ठीक है. और फिर एवरी डे हमने जो हमारा टिपिकली वॉर होता है टेक प्लेस एट 3 o'clock आया, तो आज हमने इसको 2 o'clock किया था बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू. बट हमने कहा कि उसमें फोकस था सिर्फ ऑन वन थिंग कि हमने कितने ऑर्डर्स लिए और कितने ऑर्डर्स 100% डिलीवर हो. दो केपीआईज को देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट यू आर एबल टू डिलीवर इन टाइम और कितने ऑर्डर्स में से पार्शियल डिलीवर हुए या पूरे डिलीवर नहीं. सो आई थिंक ये इन चीजों पे हमने फोकस किया और आई थिंक continuously it was not just communication with the employees. I think communication with the customers was also very important because ऐसे केसेस भी हो रहे थे कि जब हम ऑर्डर लेके जा रहे थे और रेंजर्स की तरफ से या पुलिस की तरफ से लॉकडाउन था और हम पूरी रोड ब्लॉक थी, तो वो ऑर्डर जाके वापस आ रहे थे. तो कंटिन्यूसली एंगेजिंग द कस्टमर कि आपका ऑर्डर इस वक्त यहाँ पर है और इस वक्त से हम ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सके बिकॉज रोड वाज क्लोज, हम आपको ये कल भेजेंगे. फिर सिमिलरली डिफरेंट चैनल्स हमने फेसबुक के ऊपर भी एवरी 2-3 डेज हम अपने कस्टमर को अपडेट कर रहे थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन. जिस तरह कराची में कुछ यूसेस कंप्लीटली ब्लॉक हो गए, मतलब उनके अंदर आपकी एंट्री भी बैन थी. फैसल मुझे ये बताइए कि अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत सी ऐसी ऑडियंस भी सुन रही होगी जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं रही कभी, हो सकता है कि वो आपके कस्टमर हों और वो आपको सुन रहे हो. तो यू हैव मेंशन्ड दिस टर्मिनोलॉजी, ये कुछ आपने बोला कि ये वॉर रूम आप कंडक्ट करते हैं रोज़ाना. तो टेल अस समथिंग अबाउट कि ये वॉर रूम क्या चीज़ होती है. एक तो ये हमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा. दूसरा हमारे साथ एक साहब है, उमैर नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है. उमैर नियाज़ी साहब आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि व्हाट इज़ वन थिंग विच मेक्स हम मार्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स. ऑनलाइन ग्रोसरी की जो शॉपिंग एक्सपीरियंसेस हैं उनमें हम मार्ट में एक यूनिक फैक्टर कौन सा ऐसा है जो इसको स्टैंड आउट करवाता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि हाँ, वॉर रूम का क्या मतलब है और व्हाट वन फैक्टर मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द मॉब. Okay. So war room is just a name of our meeting जो हम रेगुलरली ऑपरेशनल मीटिंग करते हैं, बट बिकॉज जस्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी ठीक है हमने उसका नाम वॉर रूम रखा. So उसके अंदर we look at the numbers that what happened yesterday, what we were supposed to do. Okay, so and it is a very crisp meeting, very focused meeting on the deliverable, and everybody so that उसके दो advantage होते हैं. So everybody comes on the same page. So operations team, call center team brings in the customer challenges, operation team अपने challenge लाती है, and then we sit together and we figure it out कि हम इसको क्या करना है. We take stock of the situation where we are and what needs to be done. So it is just a jazzy name for a meeting, but we call it war room, but it gives a sense of urgency to the entire organization. Now coming to the second question, how Mart is different from other online grocery stores is basically, so we don't have time for that, but हमारी जो strategy है, it is around we want to be customer favorite part in their digital life, and उसके 4 pillars हैं. Okay, one is loved by customer, one is engaging partnership. Third is operational efficiency, and fourth is basically winning team. So these are the 4 key areas that we work that to ensure that we get customers the ideal experience. So अगर मैं कहूँ कि in the short one line, we all talk about customer experience delivered. So we focus on the complete customer journey of our customer, starting from easy to use website. Then when he comes on the website, it is availability of the right assortment at the right prices. Then making sure that the order is delivered in time. And then if there is a problem, it is a hassle-free return policy. So we make sure that we focus on the entire customer journey and make sure that it is an absolute player for our customers basically throughout the. So I mean, if there is pain point at any stage, we try to convert it into a player point basically. So this is one of the methodology of survey design. This is one of the methodology of survey design. ओके, दैट इज़ गुड. मुझे ये बताइए कि आपने बहुत अच्छे अंदाज से हमें सारा डिस्क्राइब भी कर दिया, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस के हवाले से भी आपने मेंशन कर दिया कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय यू गॉट दैट एडवांटेज. नाउ एज्यूम फॉर अ मोमेंट कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैज़ नो टाइम लाइन्स, यानी कि ये आज मुझे नहीं पता कि व्हेन इट इज़ गोइंग टू गेट नॉर्मलाइज बैक या उस तरह की नॉर्मलाइजेशन के फेज़ के अंदर जाएगा भी या नहीं. आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने एडवांटेज जो आज अचीव कर लिया है, हाउ टू सस्टेन इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर ये चीज़ लंबी हो जाती है और इलास्टिक हो जाती है, व्हाट आर योर प्लान्स टू मेक दिस सक्सेस अ सस्टेनेबल सक्सेस.
Okay, first of all, already if we were at 100, we went as high as 400. Now we are already down to 200. Okay, so हमारी इस वक्त ट्रैफिक भी और ऑर्डर्स भी दोनों आपस में कोरिलेटेड ही होते हैं, इज डबल. Okay, so we have already increased our capacity. We are hiring more people because we foresee के हम जो न्यू नॉर्मल है जिसे हम कहते हैं. So if we were at 100, we went as high as 400. Currently we are at 200. So what we anticipate is that even after when things normalize, this will settle around 140, 150. So we see that आपने अपनी बात में ये कहा है कि यू आर हायरिंग न्यू पीपल. आज दुनिया में, आज पाकिस्तान में लोग परेशान हैं कि उनके ले ऑफ्स का खतरा है, उनको अपनी जॉब्स जेपरडाइज होती हुई नजर आ रही हैं, एंड यू आर टेलिंग मी दैट यू आर हायरिंग पीपल. इफ दिस इज द केस, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें हमारे लोगों के लिए. I mean, we are fortunate. Our business is expanding. Our business is growing. We are seeing a lot of growth, and we see it going forward as well. So right now, we just hired head of purchase. We are currently we are looking for head of logistics. We have position of category officers, fresh graduates, and 2 positions are open. And as we expand, we have new roles in operations as well. So because there's a lot of manual work, lot of physical work also. So on operational side, we're looking at picker, packers, and their supervisors as well. And then in head office also, we're looking at fresh MPAs who can join at management range level. दैट इज़ नाइस, दैट इज़ रियली नाइस. इमरान यूनुस साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिगार्ड्स भी दे रहे हैं और आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं फैसल के इन पाकिस्तान द ऑनलाइन शॉपिंग इज़ ग्रोइंग बट एट द सेम टाइम परसेप्शन ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज़ नॉट गुड. How do Hummart is mitigating this challenge and managing the customer perception? यानी कि perception about the online shopping is not good, whereas पाकिस्तान के अंदर online shopping का trend increase हो रहा है. ये जो perception part है customer का, इसको mitigate करने के लिए Hummart क्या कर रहा है? Okay, so जब हमने Hummart लॉन्च भी किया तो सबसे पहले जो हमारी रिसर्च के अंदर जो फाइंडिंग्स थी उसमें सबसे जो की एरिया था कि व्हाई पीपल डोंट शॉप ऑनलाइन वाज अ ट्रस्ट फैक्टर. सो हमने कोशिश की है कि हमने वी इंश्योर कि व्हाटएवर वी प्रॉमिस वी डिलीवर. और जो मेरा एक स्टैंडर्ड लाइन है, पूरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में बार बार कहता हूँ कि वंस ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट, it is the responsibility of the entire organization to make sure that order is delivered on time. Okay? So what we are ensuring is कि okay कि हमारा customer experience, we focus on the entire customer experience and still we have no questions asked return policy. So if the customer is not satisfied with the product and he wants to return it, we have no questions asked return policy. Having said that, जो इमरान बात कर रहे हैं कि इस वक्त जब हमारे orders increase हुए तो we were probably not at our best behavior. I will be the first to confess that because and there were things that were not in our control. So first of all, we deliver same day or we deliver next day. So we were already delivering after 5 days. So people who are our regular customers, they understand Hummart, and we were getting about 70% orders from our existing customers. But we were getting 30% new customers as well. So for them, the first experience with Hummart was not ideal. Getting the groceries after 5 days. And then there were challenges in that as well, that when we are going out and delivering them, there were roadblocks and we are not able to deliver the packet on the committed date. So I think the communication part again became very important, that actually keeping the customers engaged and letting them know that your order is on way. It is not, you are not being able to deliver it today because you have to receive it, things like that. दैट इज़ गुड. मोहम्मद उस्मान गुलजारी साहब ने कहा है माशाल्लाह, विश यू मोर सक्सेस, आपको सक्सेस विश कर रहे हैं. मुझे ये बताइए फैसल, थैंक यू वेरी मच. व्हेन एवर दिस काइंड ऑफ क्राइसिस इज इनकाउंटर्ड बाय द न्यू पीपल, न्यू एंट्रेंट्स इन द बिजनेस, कोई नए स्टार्टअप्स है, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अगर इस तरह के क्राइसिस इनकाउंटर करना पड़ जाते हैं, तो इन योर व्यू पॉइंट वुड बी द फर्स्ट बेस्ट 3 एक्शंस which that entrepreneur or businessman must take? कौन सी ऐसी 3 टॉप ऑफ द लाइन चीजें जो आप रेकमेंड करेंगे कि भाई ये इनकाउंटर करना पड़ गया, अब आप ये वाले 3 काम कर लो? अक्षत, जिस तरह मैंने भी शेयर किया कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, आई थिंक द की
areas, three things that worked for me was number one, communication part. I think communication is the most important. So communication with your team, communication with your stakeholders like government department से, in our case rangers से बात करना, home department से बात करना, या even हमारा e-commerce की trade body है, think tank है, उसको engage करना, ठीक है, अपने employees से, अपने customers से. So communication is most, I think the most important. Second thing is that you need to show up as a leader. You need to show up. You need to be visible. Okay, you need to be there with the team. Okay, and thirdly, I would say that it is all about action. Because you cannot go to a shell. I mean, it is things are chaotic things. So you need to be out there with your team, actually helping them solve the problem, breaking down the problem into bits and pieces so that it is easy for them. But I mean, you mentioned startups. So I mean, startups can एक और चीज होती है that I would like to highlight is the cash. Especially in हमारे case में, तो we are fortunate that we are growing. But there are startups जिनके like if you are a startup related to travel, ठीक है, I mean travel is down by 80%. Okay, so probably your business is down. In that case, you need to look at your cash flows as well, because you need to make sure that you have enough runway. And if you don't have enough runway, you need to pivot. Okay, so if you if travel is down, what else you can do and to make sure that you can survive? Okay. So I think these are the some of. I mean, I've shared my experience that what worked for me. But I think for starters point of view, cash and looking at your runway are also important aspects. सो यू आर सजेस्टिंग कि भाई अगर आपको इस तरह का, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल की एग्जांपल दी है, तो आपको अपनी पिवट करना है, अपनी अपनी चीज़ों को रीलुक करना है. अब एक एम्प्लॉई है जिसने पूरी ज़िंदगी नौकरी की है और आज उसने पहला तजर्बा किया बिज़नेस का 2 महीने पहले, और उसने उस तजर्बे को करने के लिए वो वैसे ही लीप ऑफ फेथ इतना बड़ा था कि उसने और कोई काम करने का टाइम ही नहीं था. उसने सारा का सारा फोकस, एनर्जी, फाइनेंस इसी में डाला था. अब वो इस वक्त जेपरडाइज खड़ा हुआ है, डायरेक्शन लेस खड़ा हुआ है. मुझे ये बताइए कि उस बच्चे को आपने क्या कहना है, वो आज क्या करे? आज 11 मई है, आज रात को सोने से पहले उसने कौन सा एक्शन करके सोना है? मुझे उसको गाइड करना है. आई थिंक स्टार्टअप के अंदर, ठीक है, तो आपको वर्किंग में आपको बोर्ड स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है. फर्स्ट नीड टू लुक एट द कॉस्ट, ठीक है, कि कौन सी कॉस्ट है जो वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर वो उसको कम कर सकता है, ठीक है. और फिर उसको देखना है हाउ क्विकली ही कैन एक्चुअली मूव. जो पिवट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको हम मार्ट की क्या पिवट थी. हम मार्ट ने जब शुरू किया तो हमारी प्लान था कि वी विल बाय फ्रॉम वन टॉप रिटेलर इन कराची एंड देन वी विल सेल टू कस्टमर. बट हमने उसके साथ एंगेज किया तो हमें वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो हमने इमीडिएटली कहा कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट इन द एंटायर वैल्यू चेन. हमने कहा हम अपना वेयर हाउस बनाएंगे, वी रेज द लेवल ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट. और हमारी ये फर्स्ट पिवट थी कि इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम ए रिटेल आउटलेट, वी विल हैव आवर ओन वेयर हाउस एंड हम उस तरह और उससे हम अपने कस्टमर को सर्व करेंगे. सो सिमिलरली आपको देखना है कि व्हाटएवर योर एरिया इज, व्हाटएवर योर, तो उससे एडजॉइनिंग एरियाज कौन से हो सकते हैं जिसके अंदर अभी भी रूम फॉर ग्रोथ, ठीक है. और आपको पिवट करने की जरूरत है. यू नीड टू ट्राई समथिंग, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट समथिंग कि ओके मे बी मैं ये चीज कर लूं तो इसके अंदर मुझे ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है. सो अगर ट्रैवल बंद है, ठीक है, तो ट्रैवल से मतलब फूड इज स्टिल, लोग अभी भी तो खा रहे हैं लोग, तो आप में भी ट्रैवल ब्लॉग से फूड ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हो. I'm just thinking loud right now. आई थिंक दैट इज़ मार्वलस. ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने हमारे साथ शेयर किया. हमें ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के बारे में पेंडेमिक से पहले, प्री पेंडेमिक फेज़ के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा ये कहा जाता था फैसल साहब कि ये बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है, बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स के अंदर लोगों ने आना है. विद दिस थिंग कमिंग इन एज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, डू यू थिंक दैट वो जो पहले वाली ट्रिजेक्ट्री थी इट इज़ गोइंग द सेम मोमेंटम के साथ जाएगी, थोड़ा सा डिक्लाइन के बाद अप करेगी, या अप सर्ज अभी से ही आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया? विद दिस थिंग कमिंग इन, ई कॉमर्स का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है? एंड विद दैट व्हाट एवर द फ्यूचर यू आर फोरसीइंग, फोरकास्टिंग, हम मार्ट उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? शहजाद, पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत ई कॉमर्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है. जस्ट टू गिव यू फुल नंबर्स, पाकिस्तान की जो टोटल रिटेल मार्केट है हमारे अपने एस्टिमेट्स के मुताबिक इट इज $152 बिलियन. और जो स्टेट बैंक की लास्ट रिपोर्ट थी उसके अंदर जो ई कॉमर्स टोटल पाकिस्तान के अंदर वो 100 बिलियन रुपीस की, नॉट इवन $1 बिलियन. सो राइट नाउ पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स का साइज है वो 0.5% भी नहीं.
if you compare it to other countries, America के अंदर it is 8%, China is leading the way by about 17-18%, और even our neighboring country India में भी वो 2-2.5% के ऊपर. So e-commerce के अंदर I see के भी अभी बहुत room है to grow. अभी आप 0.5% के ऊपर भी नहीं है. Similarly, अगर मैं बात करता हूँ ग्रोसरी के अंदर, तो पाकिस्तान की जो $152 बिलियन की टोटल मार्केट है, तो जो ग्रोसरी सेगमेंट है वो है रफली $36 बिलियन. ठीक है, इंडिया की रफली ग्रोसरी मार्केट इज अबाउट 360 to 400 बिलियन डॉलर. तो आप रूल ऑफ थंब में 1/10 उसका ले लें तो $36 बिलियन की ग्रोसरी मार्केट. और इवन इन कराची इसका $36 बिलियन का 10% ले लें, $3.6 बिलियन. तो कराची की ग्रोसरी मार्केट इज 500 बिलियन रुपीज. तो कराची के अंदर अभी ई कॉमर्स जो है इवन 2-2.5 बिलियन रुपीज का भी ऑनलाइन नहीं हो रहा. तो अपॉर्चुनिटी इज वेरी बिग. आई थिंक ये जो ग्रोसरी के अंदर, तो आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई आप ओवरऑल सेल्स नंबर जो है एकदम सर्च करेंगे, और हमने वो देखा भी है. ठीक है, एटलीस्ट मंथ ऑन मंथ मैं देख रहा हूँ कि हमारी 50% ग्रोथ को मतलब नजर आ रही है, ट्रैफिक के अंदर भी, ऑर्डर्स के अंदर भी. और आई सी के भी दिस इज सस्टेनेबल, और उसके लिए हमें अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है. वी नीड टू हायर मोर पीपल, वी नीड टू मेक श्योर कि वी आर एबल टू सर्व. ओवरऑल अगर आप देखें तो देयर इज ए चांस, बिकॉज ओवरऑल आप जो ओवरऑल इकोनॉमी है विद ऑल दिस लेऑफ्स, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक डिप नजर आएगा. ठीक है, कुछ कैटेगरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स है या फैशन ब्रांड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर उनकी सेल्स के अंदर आई सी थोड़ा सा डिप आएगा. बट ओवरऑल जब लोगों को एक ऑनलाइन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, और जो एक फियर फैक्टर है, और कंपनी ओवरऑल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर आई थिंक बहुत बड़ा बोनस है कि दे आर एबल टू गिव द राइट एक्सपीरियंस. ठीक है, आई एम वेरी पॉजिटिव कि पाकिस्तान के अंदर 1 year down the road, 2 year down the road, even when the coronavirus is over, we will look at this juncture. Okay, this was a tipping point for the e-commerce industry. आप ये जिम्मेदारी हमेशा हर कंपनी के अंदर खुद क्यों उठा लेते हैं कि यू हैड ऑलवेज बीन द पायनियर इन दिस थिंग? बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि 2009 के अंदर जब हमने इजी पैसा लॉन्च किया था तो वी वर पायनियर इन द फील्ड, और वहाँ पे हमने पूरा फर्स्ट मूवर के तौर पे पूरी पेवमेंट की रोड बनाया, रोड मैप के ऊपर हम चले, और फिर बाकी ऑपरेटर्स आए एंड दे फॉलो द थिंग. अब यहाँ पे भी आप ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप फोर्सी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यू पीपल विल बी डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. मुझे ये बताइए कि एज ए फर्स्ट टाइमर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको डिसहार्ट नहीं होना और उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमेशा देखना है? विद दिस थिंग इन माइंड यू आल्सो आंसर मी कि बीइंग इन द टॉप पोजीशन, आपकी ये जो टीम है जो इस वक्त पेंडेमिक के तौर पे आपके साथ काम कर रही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज के तौर पे आपने ई कॉमर्स के ऊपर इस बहुत सी मार्केट को कैप्चर करना है, उस टीम के मोरल को हाई अप रखने के लिए आजकल हम मार्ट में क्या हो रहा है? यू से समथिंग अबाउट योर टीम एज वेल. I think I'm fortunate that I've got a very passionate and motivated team. और हम मार्ट की 4 core values हैं. So it is integrity, it is ownership, it is customer centricity, and it is bias for action. Okay. और I think I mean इस pandemic के अंदर the way this team has gelled together, because एक बंदा कुछ नहीं कर सकता. I think the credit goes to the entire team that they have risen to the occasion. और उन्होंने despite of the fact कि भाई public transport nahi hai, there are challenges, theek hai, the people are showing up in the office, theek hai, they are putting in extra hours. Okay, on Hummart part, I mean, we have actually also increased the incentive. We have increased the incentive for our riders, we have increased the incentive for our outbound staff also. Okay, so we are also giving people, we are differentiating the people who are performing and then people who are not able to show up because of the challenges. Okay, so I think team has done a great job actually to make sure that we make the most of the opportunity. Secondly, Ashad, I will just like to correct, we are not the first one. I mean, जब हमने launch किया था grocery, ठीक है, तो हम there were 16 players already in the market. We were fortunate that there is no documented numbers, but what our vendors tell us, the Unilevers and P&Gs and the Stills of this world, कि हम grocery के अंदर we are a clear number 2. Daraj is number 1. They deliver grocery across Pakistan. We deliver only in Karachi, but we are a clear number 2. So we have been our growth has been alhamdulillah, it's been phenomenal. So I think, and we look forward to actually continue with this growth by focusing on our on core values
and focusing on the 4 pillars of the strategy that we've identified. That is loved by customer, engaging partnerships, operational efficiency, and winning. So team is a core part of my strategy. वेरी नाइस। आपके साथ बात करते हुए हमेशा मुझे ये प्रॉब्लम रहा है कि मैं इतना स्पेल बाउंड हो जाता हूँ कि मुझे टाइम का एहसास नहीं रहता है। एंड अगेन वी आर इन टू 36 मिनट ऑफ द डिस्कशन विच वॉज नॉट प्लान दैट वे। लेकिन जस्ट टू क्लोज द डिस्कशन फर्स्ट, मुझे ये बताइए कि ऑन योर पर्सनल फ्रंट, अगर मैं एक टॉप लीडर को ये देखना चाहूँ जो कि इस वक्त CEO और को फाउंडर के तौर पे काम कर रहे हैं हम मार्ट में, कि फैसल साहब का जो अपना टिपिकल डे है, हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अप स्टेप इन टू द स्पीड ऑफ द मार्केट, और उसके लिए आप कोई रिकमेंडेड कोई बुक्स हैं, कोई ऐसे लिटरेचर आप पढ़ते हैं जिससे आप अपने आप को अपवर्ड रखते हैं, आप अपने नए एंटरप्रेन्योर्स को, यूनिवर्सिटी ग्रेड्स को क्या चाहेंगे कि क्या एडवाइस करें कि वो क्या रीडिंग करें आजकल के दिनों में? Okay, typical day यही होता है कि I mean you really need to plan कि आपने किन areas के ऊपर focus करना है. Okay, so and it's situational also. Okay, before this COVID मेरा focus ज़्यादा partnerships के ऊपर था, marketing side के ऊपर ज़्यादा था. But since this episode of coronavirus, मेरा जो majority of the time है वो operations के अंदर भी काफी तरह involve हो गया. Yeah, I need to make sure कि मेरे operations smooth हैं and we are actually meeting our promises, we are delivering what we are promising to our customers. और इसके साथ साथ I think I've always been into books, you know that, और different stages के ऊपर I've been I would say that different books have actually shaped my thinking, shaped my career as well. So if I go back to my early days in Unilever, I'm talking about 2003. I mean, I read the book Awaken the Giant Within, Anthony Robbins, also known as Tony Robbins. Okay, so I think that book really helped me actually get the most out of myself to really achieve excellence in what you are doing. Then I think another book that was Execution, the Discipline of Getting Things Done. Ram Charan and I think Lawrence Pisodi. Basically, this is also about 2004-2005 book. Then I think Working with Emotional Intelligence is also one of the good books. Speed of Trust is one book that is one of my favorites. Basically, it talks about trust and it talks about basically that how if you have trust within the organization, how things move so fast and you are able to do many things in very less time, basically. And I mean, Good to Great and Great by Choice, two books that I did my sales conferences also in Telenon by Jim Collins. Very numbers driven books, basically. So, and I think I'm continuously into reading because I mean, while I was in sales, I have a lot of traveling. So I've always used to carry one book or two books with me. So right now also I'm studying about e-commerce, how e-commerce is evolving, what the success of Alibaba, the success of Amazon. To anybody who is basically starting a new business, I would say that learning is a continuous part. But I mean, when you're starting a business, you need to be very clear what problems you're trying to solve. Okay, so what problems you're trying to solve? You need to answer a few questions, and the first one is what problem you're trying to solve, and for whom you're trying to solve. What is the size of the market that we're trying to solve the problem? How that problem is being currently solved? Okay, and how your solution is better than the current solution? And then lastly, are people willing to pay for that solution? I mean, you can come up with a solution that is better than the existing solution, but people are not willing to pay for that. So, I mean, there are a lot of startups that people, young entrepreneurs who just want to have passion for something and they just start that area, get into that area. But I think there are 2, 3, 4 fundamental questions that I look into before getting into that area. वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एनकम्पस किया है. वी स्टार्टेड द डिस्कशन विद हम मार्ट टेकिंग दिस ऑल सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी एंड यू केम आउट विक्टोरियस इन दिस क्राइसिस. देन यू टोल्ड अस कि आप के पास जो है वो 1/3 ऑफ द टाइम होता था और स्टाफ जो है वो भी हाफ था. टाइमिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो भी बहुत लिमिटेड थी. यू टोल्ड अस अबाउट हाफ ऑफ द स्टाफ, fear, safety of the employees, all those problems, and then you emerged as an opportunity. You got most
मोस्ट आउट ऑफ इट एज एन अपॉर्चुनिटी। फिर आपने हमें वॉर रूम का मतलब बताया कि हाउ यू कंडक्टेड, व्हाई यू कंडक्टेड एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग आउट समथिंग आउट ऑफ इट। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नीड टू शो अप एज ए लीडर, और फिर एक्शन ओरिएंटेड ज़िंदगी गुजारनी हमने। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट ही हैड रिकमेंडेड अस कि हमें हर वक्त जो है वो एक लिटरेचर के साथ अपना रब्ता रखना चाहिए। टू ऑल दिस things summing up, do you have anything as a last minute advice for the audience? You go ahead with that, please. I think I would say that in this crisis we need to stay positive. कहते हैं कि हर चीज गुजर जाती है, this will also pass. So people who are I mean their salaries are being cut, or they fear that their job might lose their job. I think they need to be positive and look at the positive thing. और उसमें एक चीज का जो मैं जस्ट हाईलाइट कि वो चीज है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। कहते हैं कि इंसान जितना शुक्र करता है उस नेमत को बढ़ाते हैं। और अभी भी हम इस एनवायरनमेंट में देखें, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, हमें बहुत लोगों से बेहतर, ठीक है। और हमारे पास मतलब स्पेशली द पीपल हु आर एक्चुअली लिसनिंग टू दिस, आई एम क्वाइट श्योर दैट अल्लाह वो पाकिस्तान की मतलब टॉप 1 or 2-3% के अंदर आते होंगे, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव अ लॉट टू बी थैंकफुल अबाउट। और अगर हम उन चीजों पर फोकस करते रहेंगे तो आई थिंक वी कैन स्टे पॉजिटिव और हैव फेथ आल्सो कि भी जो अल्लाह ने लिखा है वो मेरे लिए मुझे वैसे ही मिलेगा। और जो भी चीज हो रही है, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई बेहतरी हो। और एट द सेम टाइम आई थिंक अगर जो हमारे पास टाइम है, वी मेक द मोस्ट ऑफ इट। हम जस्ट अगर हम जो भी हमारा क्राइसिस है, हमारे का डिफरेंट लेवल है, ठीक है, वी से कि भाई ओके हम आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए हरकत में बरकत है, खाली बैठ जाएंगे हाथ पैर रख के कुछ नहीं होगा। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट ओके वी आर थिंकिंग, वी आर एक्शन ओरिएंटेड। और जैसे ये क्राइसिस खत्म होता है, हमने क्या चीज करनी। और रमजान का महीना है, अब दोस्तों से मेक द मोस्ट ऑफ रमजान एंड लुक टेक केयर ऑफ द नीडी पीपल एज वेल। ग्रेटिट्यूड की बात हुई है, ट्रस्ट की बात हुई है, और इस बात की कॉन्फिडेंस की बात हुई है कि यू मर्ज एज ए बेटर ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ दिस। फैसल, आई वाज रीडिंग अ कोटेशन व्हिच सेज दैट इट इज़ द सेम बॉइलिंग वाटर which softens the potato but hardens the egg. It is the same boiling water. You see, these are the circumstances which are equal and alike for all of us, but this is हम डिफाइन करेंगे कि ये सर्कमस्टांसेस हमें किस तरह से इमर्ज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विजडम शेयरिंग। आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर टीम एज वेल, फॉर यू, फॉर योर फैमिली। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इस दुआ के साथ कि आप अपने बिजनेस में भी प्रॉस्पर करें, अपनी ज़िंदगी में भी प्रॉस्पर करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। Thank you for giving me the opportunity. Allah Hafiz.